Hello children, I am Poonam Bagga back again with you, welcoming you in your maths class. We are studying class 10th maths, chapter 6 triangles. Up till now in this chapter we have learnt what are similar triangles. We also learnt the basic proportionality theorem or Thales theorem and also its converse. Then we learnt the different criteria for similarity of triangles. Now today we will be dealing with the areas of similar triangles. We have one result, one theorem. Let us see what it is. It says the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. Here it has been said that if we have two similar triangles, then the ratio of their area will be equal to the square of the ratio of their corresponding sides. Let us first visualize this thing. We take two similar triangles. Let this one be the first triangle and let this one be the other one. Let us give them name A, B, C and this one as P, Q, R. And now we are taking triangle ABC similar to triangle PQR. इनको हम similar मान के चलते हैं. जब ये similar हैं तो इनकी corresponding sides के ratio अपने आप ही equal होंगे. How we will write them? AB from here upon from here we will take PQ. This ratio will be equal to BC upon QR. BC from here, QR from here and this will be equal to CA upon RP. Here we have CA, here we have RP, this we know. Now we will be dealing with the ratio of their areas. Area of triangle ABC लेंगे हम और फिर हम लेंगे area of triangle PQR. If we take area of triangle ABC upon area of triangle PQR, ये इनके एरिया का रेशियो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. बाय दिस AR we are meaning that area of triangle ABC. Here we have area of triangle PQR. इनका अब रेशियो ले रहे हैं, मतलब इनको डिवाइड कर रहे हैं और अब इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये रेशियो किसके इक्वल होगा? इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल. करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ही, इनके रेशियो ये देख ही रहे हैं आप, ए बी अपॉन पी क्यू, ये रेशियो ही तो है. अब इसी का स्क्वायर करना है. ए बी अपॉन पी क्यू ये है करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और इसका जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये इक्वल है इन एरियाज़ के रेशियो की. सो अगेन लेट अस हैव अ लुक. द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा. और क्योंकि ये तीनों ही रेशियो आपस में इक्वल हैं तो यहाँ हम लिख सकते हैं दिस वन इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर, दिस वन इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी होल स्क्वायर. सो दिस इज़ द रिज़ल्ट विच वी विल बी नाउ प्रूविंग. अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स ऐसे दिए हों जो सिमिलर हों तो उनके एरिया का रेशियो इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के. दिस इज़ गिवन हियर एज पर द स्टेटमेंट. ये तो हमारे पास गिवन है दो सिमिलर ट्राइंगल्स और इसको अब हम प्रूव करेंगे. वी विल बी प्रूविंग दिस रिजल्ट. ये रिज़ल्ट प्रूव करते हैं जो अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है. एक बार फिर से देखिए कि सिमिलर ट्राइंगल्स का जो एरिया है उनका रेशियो इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल. गेटिंग इट? नाउ वी आर प्रूविंग द सेम रिजल्ट. वी हैव रिटन व्हाट इज गिवन. टू ट्राइंगल्स ABC and PQR are given such that they are similar. Then we have to show area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to the square of the ratio of the corresponding sides as we wrote just now. This we will be proving. Now for proving this we need to take the area of these two triangles. ये दो triangles हमारे पास हैं जो कि similar दिए हुए हैं. अब हम इनका area निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर area की बात हो रही है. And what is the area of a triangle? How do we find it? The area of a triangle is given by half base into height और we say half base into altitude. अब यहाँ पर हमारे पास height तो दिख नहीं रही है तो ये construction करना होगा इसे prove करने के लिए. Here we will drop one perpendicular in this way and drop one more perpendicular in this way. And let us now name them also. This be AM, a perpendicular, and this be PN, another perpendicular. We have drawn these two perpendiculars. Now we will find the area. We write the construction also that we are doing first. Construction, draw AM perpendicular to BC and PN perpendicular to QR.
यहाँ पर BC पर हमने AM परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और QR पर PN परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है। अब हम इन ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे। वी टेक द नेक्स्ट पेज हियर, वी हैव दीज परपेंडिकुलर्स, वी फर्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ triangle ABC. This is given by half base into height. This we know. Area of a triangle is half base into height, and so this can be written as half base is your BC and height is now AM. ये इस triangle की height हो गई और ये base हो गए. Then we find area of triangle PQR. This will be again half base. Base is this time QR. ये जो side है QR, ये पूरी इसकी base हो गई QR, और अब इसकी height क्या हो गई? This one PN. ये जो perpendiculars हमने drop किए हैं, ये इनकी height हो गई triangle की. And now we find the ratio of these areas. Area of triangle ABC upon area of triangle PQR. We are finding this ratio now. This will be equal to half into BC into AM upon half into QR into PN. Now we can easily cancel this half by half, and now we are left up with area of triangle ABC upon area of triangle PQR. This is equal to BC upon QR into, here we have AM upon PN. Let this be result number 1. इसको result number 1 नाम दे रहे हैं. यहाँ क्या देख रहे हैं हमने इस triangle का area find out किया, triangle ABC का half base into height, we got this result. Then area of triangle PQR, it is half base into height, this result. और अब हम इनका ratio ले रहे हैं, ratio से हमें ये मिल रहा है. अब हमें ये जो ratio है equal prove करना है. देखिए यहाँ पर AB upon PQ whole square के, इसके equal लाएंगे हम. इसके लिए हमें BC अपॉन QR को भी AB अपॉन PQ के इक्वल प्रूव करना होगा, और AM अपॉन PN को भी हमें AB अपॉन PQ के इक्वल प्रूव करना होगा. लेट मी राइट इट हियर वंस. हम क्या करना चाह रहे हैं? इसको भी हम AB अपॉन PQ के इक्वल प्रूव करेंगे और इसको भी हम AB अपॉन PQ के इक्वल प्रूव करेंगे. और जब ऐसा हो जाएगा तो हम लिख पाएंगे रेशो को इक्वल टू AB अपॉन PQ होल स्क्वायर, जो कि हमें प्रूव करना है. समझ में आ रही है? हमें ये रेशो इसके इक्वल प्रूव करना है AB अपॉन PQ होल स्क्वायर के, और वो हम कैसे करेंगे? BC अपॉन QR को भी हम AB अपॉन PQ के इक्वल प्रूव करेंगे और AM अपॉन PN को भी AB अपॉन PQ के इक्वल प्रूव करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि ये इसके स्क्वायर के इक्वल मिल जाएगा. अब हम पहले लेते हैं AM अपॉन PN को AB अपॉन PQ के इक्वल कैसे प्रूव करें. इसके लिए यहाँ आप समझिए कि ये दो रेशोज़ हमें इक्वल प्रूव करने हैं. AM अपॉन PN इक्वल टू AB अपॉन PQ, ये दोनों रेशोज़ हमें प्रूव करने हैं इक्वल. तो ऐसे में हम ऐसे दो ट्राइंगल्स ढूंढेंगे जिनकी कि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हों, और जब हम उन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर देंगे तो अपने आप ही इन करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो हमें इक्वल मिल जाएंगे, और तब ये रेशो इक्वल टू दिस वन मिल जाएगा हमें. बात समझ में आ रही है? तो अब हम ढूंढते हैं वो ट्राइंगल्स जिनकी कि ये साइड हो. देखिए AM और PN, यहाँ पर देखेंगे आप, ये है साइड AM और ये है साइड PN, और फिर AB, दिस इज AB एंड दिस इज PQ. तो अब हमें कौन से दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना चाहिए जिससे फिर हमें इन करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल मिल जाए? सोचिए आप. ऑब्वियसली वी शुड टेक दीज लेफ्ट साइड ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN. अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर देंगे, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल मिलेंगे, और तब जो हम चाह रहे हैं कि AM अपॉन PN को AB अपॉन PQ के इक्वल रखना, वो हम इजीली कर पाएंगे. गेटिंग इट? सो नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट पेज एंड प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स एज सिमिलर. वी टेक इट हियर. नाउ इन ट्राइंगल दिस वन ABM and triangle PQN, we take these two triangles. इनमें अब आप बताइए क्या क्या चीज़ें बराबर हैं. हमें इन्हें सिमिलर प्रूव करना है. ये ट्राइंगल और यहाँ से ये ट्राइंगल, इनको सिमिलर प्रूव करना है. कैसे करें? एटलीस्ट 2 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल बताने होंगे. 2 एंगल्स अगर हमें इनमें आपस में इक्वल मिल जाएं तो AA रूल से दोनों
सिमिलर हो जाएंगे। तो एक एंगल तो हमें दिख रहा है, ये एंगल है 90 डिग्री, दिस वन, एंड दिस वन इज अगेन 90 डिग्री, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया है कि ये परपेंडिकुलर है। सो फर्स्ट वी कैन राइट एंगल AMB, दिस इज इक्वल टू एंगल PNQ equal to 90 degree. Why? Since AM is perpendicular to BC and PN is perpendicular to QR, इसलिए ये यहाँ पर दोनों 90 डिग्री हैं। अब साथ ही साथ आप देखिए ये एंगल B, यहाँ पर एंगल B और ये एंगल Q, क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि याद कीजिए हमें ये दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR सिमिलर दिए हैं, और सिमिलर ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। सो वी कैन राइट एंगल B इक्वल टू एंगल Q। यू कैन राइट सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, और क्योंकि ये सिमिलर है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इनके इक्वल हो गए। और अब क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल्स इक्वल मिल रहे हैं हमें, तो इसलिए दोनों ट्राइंगल्स AA रूल से सिमिलर हो जाएंगे। वी कैन राइट दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ABM इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQN बाय AA सिमिलैरिटी। गेटिंग इट? कैसे? देखिए अब यहाँ पे ये जो नोटेशन लिखा है हमने, इस पर ध्यान दीजिए। B और Q इक्वल हैं, यहाँ पर B और Q इक्वल हैं, यहाँ पर M और N एंगल्स इक्वल हैं, M और N बिल्कुल सही जगह हमने प्लेस किए हैं लेटर्स, और सो दिस इज द राइट सिंबॉलिक फॉर्म। नाउ वी आर गेटिंग दीज टू ट्राइंगल्स सिमिलर। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। सो हियर वी कैन राइट नाउ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, दे विल बी इन सेम रेशियो। लेट मी मेक सम स्पेस। This implies the corresponding sides of these triangles will be in same ratio. इनका सेम रेशियो में लिख लेते हैं हम। साइड्स देखिए, यहाँ से AB, यहाँ से PQ, ठीक है, AB upon PQ, this will be equal to, now we have to take which two sides, just have a look, AM and PN, इन्हीं को हमें AB upon PQ के इक्वल प्रूव करना है। सो हियर वी कैन राइट AM, देखिए AM और यहाँ से PN, सो दिस इज इक्वल टू AM upon PN। लेट दिस बी रिजल्ट नंबर 2। तो अब हमने यहाँ पर जो रेशियो था इसको तो हमने प्रूव कर दिया है AB upon PQ के। देख रहे हैं आप, यहाँ से ये रफ वर्क कर रही हूँ मैं, यहाँ ये जो रफ वर्क है नीचे, इसको फेयर मत समझिएगा, बस समझने के लिए आपको बता रही हूँ, इसको ऐसा लिखना नहीं है एग्जाम में। देन हियर AM अपॉन PN दिस इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, हमने ये प्रूव कर दिया इक्वल। अब हमारी बारी है BC अपॉन QR को AB अपॉन PQ के इक्वल प्रूव करने की, और ये बहुत ही सिंपल है, इजी है। कैसे करेंगे हम? देखिए ये दोनों ट्राइंगल्स ABC और PQR दोनों ही सिमिलर हैं। अब क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। वी राइट हियर ऑल्सो नाउ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। दिस implies corresponding sides of these triangles will be proportional or in same ratio, will be proportional। Proportional का मतलब ratio will be equal। This implies that AB upon PQ this will be equal to BC upon QR and this will be equal to CA upon RP। Let this be the third result, this is P। ठीक है, अब यहाँ से हमें देखिए BC अपॉन QR किसके इक्वल मिल गया? AB अपॉन PQ के। और अभी हमने जब यहाँ पे किया, देखिए AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR को भी हमें AB अपॉन PQ के इक्वल प्रूव करना था,
और अब हमने कर दिया। तो अब इन दोनों की जगह हम इजीली ये लिख सकते हैं रेशो ए बी अपॉन पी क्यू। स्टेप नंबर 1 में जो रिजल्ट नंबर 1 है इसमें हम रिजल्ट नंबर 2 यहाँ से और रिजल्ट नंबर 3 यहाँ से यूज़ करते हुए इजीली लिख सकते हैं। वी राइट हियर नाउ फ्रॉम 1, 2 and 3 we get area of triangle ABC upon area of triangle PQR. This is equal to actually BC upon QR into AM upon PN. ये था आपका फर्स्ट रिजल्ट से। अब बी सी अपॉन क्यू आर की जगह भी हम लिखेंगे यहाँ से ए बी अपॉन पी क्यू, और ए एम अपॉन पी एन की जगह भी अब हम यहाँ से लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू। सो हियर नाउ वी विल बी राइटिंग इन प्लेस ऑफ दीज टू ए बी अपॉन पी क्यू into AB upon PQ, and now this implies area of triangle ABC upon area of triangle PQR. This is equal to AB upon PQ, क्योंकि ये दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, so we can easily write it square AB upon PQ whole square, और यही तो प्रूव करना था। अब क्योंकि ये तीनों ही रेशियोज इक्वल है साइड्स के, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं यूजिंग रिजल्ट नंबर 3 we get area of triangle ABC upon area of triangle PQR. This is equal to AB upon PQ whole square. This can be written equal to, here we have BC upon QR, so BC upon QR whole square. This can be written as CA upon RP whole square. तो ये है वो रिजल्ट जो हमें प्रूव करना था, और हमने प्रूव कर दिया कि किन्हीं दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो इक्वल होता है करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर। गेटिंग इट? हियर वी हैव प्रूव्ड दिस रिजल्ट, एंड सो वी कैन राइट फर्दर hence proved. Let us see what we have done in this proof. We go back here, we start with the starting part here. हमें दो ट्राइंगल्स दिए गए थे, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, और दोनों ही सिमिलर दिए गए थे इन द बिगिनिंग इटसेल्फ। और अब हमें प्रूव करना है कि इन सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशो इक्वल है करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये दो ट्राइंगल्स लिए, और क्योंकि हमें इनका एरिया फाइंड आउट करना है तो बेस तो हमारे पास है, हाइट भी तो चाहिए थी, इसलिए हमने यहाँ पर दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए। ये AM परपेंडिकुलर टू BC हमने ड्रॉ किया, और यहाँ से PN परपेंडिकुलर टू QR हमने ड्रॉ किया। ऐसा करने से हम इजीली इनका एरिया फाइंड आउट कर पाए। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ बेस इंटू हाइट, वो हमने किया, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ BC इंटू AM। अगेन द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, हाफ QR इंटू PN यहाँ से, और फिर जब हमने इनका रेशो लिया हमें मिल गया BC अपॉन QR इंटू AM अपॉन PN। नाउ दिस इज द रेशो ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स। अब हमें इन्हें प्रूव करना है AB अपॉन PQ होल स्क्वायर के, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है। तो इन दोनों को हम AB अपॉन PQ के इक्वल प्रूव करेंगे, AM अपॉन PN को भी और BC अपॉन QR को भी। अब AM अपॉन PN को AB अपॉन PQ के इक्वल प्रूव करने के लिए हमें ऐसे ट्राइंगल्स लेने थे जिनकी कि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हों, और फिर जब हम उन्हें सिमिलर प्रूव कर देंगे तो अपने आप ही ये करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल मिल जाएंगे। तो हमने देखा कि AM अपॉन PN, तो AM ये रेड साइड, PN ये रेड साइड, और AB PQ ये रेड साइड्स हो गई। इससे हमें पता चला कि ये दो ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना चाहिए, और वही हमने किया। इन ट्राइंगल्स को लिया और इनमें देखिए दो एंगल्स, ये एंगल M यहाँ, ये एंगल N यहाँ, ये दोनों 90 डिग्री के हैं, और एंगल B और Q इक्वल होंगे क्योंकि ओरिजिनल ट्राइंगल्स ABC और PQR सिमिलर हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स सभी आपस में बराबर होते हैं, तो B और Q एंगल आपस में बराबर होंगे। इस तरह से हमें ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर मिल गए, और इनके सिमिलर होते ही इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल हो गए। यहाँ से AM अपॉन PN आ गया इक्वल टू AB अपॉन PQ के, और ये हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पर जो ये दो रेशो थे इनमें से ये एक तो हमने इसके इक्वल प्रूव कर दिया। अब हमारी बारी थी BC अपॉन QR को इसके इक्वल प्रूव करने की। इसके लिए हमने
ये रिलेशन यूज़ किया क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR सिमिलर है, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, इससे हमें ये रेशो इक्वल मिल गए। और यहाँ से भी हमें BC/QR इक्वल मिल रहा है AB/PQ के। तो बस अब हमने इनका रेशो, जो ट्राइंगल्स का एरिया का रेशो है, ये इक्वल हमें मिल गया AB/PQ इंटू AB/PQ, और वी कैन से AB/PQ होल स्क्वायर। और अब क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो आपस में इक्वल हैं, तो AB/PQ की जगह हम लिख सकते हैं BC/QR, और ऐसे ही CA/RP, और फिर इनका स्क्वायर करेंगे। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर एंड द प्रूफ इज़ ऑल्सो वेरी मच क्लियर। वी टेक वन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस थ्योरम। हियर वी हैव एग्जाम्पल 9 from your book. In the figure, this is the figure, the line segment XY is parallel to side AC of triangle ABC. Here you can see this line segment, this is parallel to AC, and it divides the triangle into two parts of equal areas. इसका मतलब ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इसका एरिया और ये यहाँ जो ट्रेपेजियम बन रहा है, इन दोनों का एरिया एग्जैक्टली इक्वल है, एरिया इक्वल है। Find the ratio AX/AB. Getting it? Here we have to find this ratio AX/AB. AX, this is AX and this is AB. इन दोनों का रेशो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर पहले हमें सिमिलर प्रूव करना होगा इन ट्राइंगल्स को। ये जो स्मॉलर ट्राइंगल है BXY और BAC, ये बड़ा ट्राइंगल, इनको हम सिमिलर प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे? बहुत इजी है। अब देखिए ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, तो ये और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ये पैरेलल साइड्स, ये ट्रांसवर्सल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेलल लाइंस के केस में, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। ऐसे ही यहाँ से ये एंगल C और ये एंगल BYX, ये इक्वल हो गए। तो हमें मिल गए दो सेट ऑफ एंगल्स इक्वल इन दोनों ट्राइंगल्स में। हम कौन से ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं? ट्राइंगल BXY और ट्राइंगल BAC। इन दोनों में ये दो सेट ऑफ एंगल्स हमें इक्वल मिल रहे हैं, और इससे ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। जैसे ही ये सिमिलर होंगे, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा इनके एरिया का रेशो, जो अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी। जैसे ही ये दोनों सिमिलर होंगे, इनका जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BXY एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल BAC, इनका जो रेशो है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, और फिर हम इजीली ये रिजल्ट फाइंड आउट कर पाएंगे, ये रेशो फाइंड आउट कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है कि कैसे प्रोसीड करना है? वी स्टार्ट हियर विद द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट व्हाट इज गिवन इन ट्राइंगल ABC, XY is parallel to AC, this is given parallel, and it divides triangle ABC into two equal areas. ये हमने अभी बात कर ही ली है, और ये रेशो हमें फाइंड आउट करना है। वी स्टार्ट हियर द सॉल्यूशन। वी हैव टू फाइंड दिस रेशो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि रेशो फाइंड आउट करना है, हम इनको सिमिलर प्रूव करेंगे। वी राइट हियर इन ट्राइंगल BXY and triangle BAC, we see that angle BXY is equal to angle BAC. आप देख सकते हैं कि ये एंगल B भी कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, और अभी हम ये देख रहे हैं कि ये एंगल इक्वल है इस एंगल की। क्यों इक्वल है? यू कैन राइट द रीज़न। सिंस XY is parallel to AC and these are corresponding angles. Corresponding angles parallel lines के केस में जो बनते हैं, उनसे हमारा यहाँ पर मतलब है। So XY is parallel to AC and so these are corresponding angles. These are equal. Again we can say this angle BYX, angle BYX, this is equal to angle BCA, BCA. ये एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगेन गिव द सेम रीज़न, सिंस XY is parallel to AC, we have these as corresponding angles. ठीक है। अब क्योंकि इन ट्राइंगल्स में दो पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल मिल गए हमें, सो दिस इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल BXY is similar to triangle BAC by
AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पर x और a इक्वल हैं, ठीक है, ऐसे ही y और c इक्वल हैं, ठीक है, और b और b कॉमन है, तो बिल्कुल सही नोटेशन हमने लिखा है। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके जो एरिया है उनका रेशियो किसके इक्वल होगा? वी राइट इट हियर, दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ triangle BXY upon area of triangle BAC. This area will be equal to the square of the ratio of the corresponding sides. Square हो रहा है, फिर रेशियो हो रही है करस्पॉन्डिंग साइड्स की। ठीक है, थोड़ा सा समझिए यहाँ पर। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स हम कौन सी लेंगे? हमें लेना है ए बी की टर्म्स में। ए एक्स और ए बी का रेशियो चाहिए। यहाँ पर ए बी के करस्पॉन्डिंग बी एक्स मिल रहा है हमें, तो हम वही ले लेते हैं, बी एक्स अपॉन ए बी और इसका होल स्क्वायर। बात आई समझ में आपको? हमने यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी ली? ए बी चाहिए हमें, देखिए क्वेश्चन में जो चाहिए ए बी ले लिया, और ए बी के करस्पॉन्डिंग अभी इस ट्रायंगल में ए एक्स तो नहीं है पर बी एक्स है, सो बी एक्स अपॉन ए बी होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर इन एरियाज के बीच में रिलेशन ढूंढना है। क्या दिया गया है क्वेश्चन में? हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों एरिया इक्वल हैं। अब इसको समझिए, मान लीजिए कि ये एरिया है पी स्क्वायर यूनिट्स, तो ये भी होगा पी स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि दोनों ही पार्ट्स का एरिया इक्वल है। तो अब आप बताइए ट्रायंगल ए बी सी का एरिया क्या हुआ? ट्रायंगल बी एक्स वाई का एरिया अगर पी स्क्वायर यूनिट्स है तो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया कितना समझ में आ रहा है? डबल हो जाएगा, p प्लस पी, 2p स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। तो डबल हो रहा है ना इसका एरिया, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया डबल है ऑफ एरिया of triangle BXY. So here we will be using it. We take the next page. Here we write, now area of triangle BAC. This is twice the area of triangle BXY. ये समझ में आ गया आपको? हमने देखा कि ये अगर BXY का एरिया p स्क्वायर यूनिट्स है, बस ये समझने के लिए p नाम दिया है। इट इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आप समझ सकते हैं कि इसका जो भी एरिया है उसका डबल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस वन बी ए सी, और वी से ए बी सी, इसका एरिया डबल होगा। सो दिस इज वी हैव रिटन हियर, एंड नाउ दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए सी। ये जो हम यहाँ पे रेशो ले रहे हैं, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इन्हीं ट्राइंगल्स का रेशो ले रहे हैं हम यहाँ पर, तो यही रेशो अब क्या हो जाएगा वो लिख रहे हैं। देखिए, दिस विल नाउ बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई अपॉन दिस कैन बी रिटन एज ट्वाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई। समझिए आप, ये तो ऐसे लिख दिया है और इसको हमने ये ट्वाइस लिख दिया। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा एंड नाउ दिस विल बी इक्वल टू 1/2, एंड नाउ दिस इम्प्लाइज दैट एरिया of triangle BXY upon area of triangle BAC, this is equal to, यहाँ से हमें क्या मिला था? BX upon AB whole square, BX upon AB whole square, this is equal to 1/2। ये इसको आप रिजल्ट नंबर 1 नाम दे दीजिए और इसको रिजल्ट नंबर 2 नाम दे दीजिए, और यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2। यहाँ से हमें ये दोनों इक्वल मिल गए। एंड नाउ दिस विल इम्प्लाई, अगर हम यहाँ पर ये स्क्वायर है इसको राइट साइड में ले जाएं तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायरिंग का इन्वर्स ऑपरेशन स्क्वायर रूट होता है। सो हियर वी कैन राइट बी एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, और वी कैन राइट दिस इम्प्लाइज बी एक्स अपॉन ए बी is equal to square root of 1 is 1 and square root of 2 is square root 2. ठीक है, now this is the ratio bx upon ab and we were asked to find ax upon ab. हमें क्या मिला है? bx upon ab। देखिए आप यहाँ से रिलेट कीजिए फिगर से, हमें मिला है bx upon ab, ये कंप्लीट लेंथ, और चाहिए हमें ax, ये लेंथ चाहिए, तो इसके लिए हमें माइनस करना होगा ए बी में से बी एक्स को। तो वो कैसे करेंगे हम? यहाँ पर दोनों साइड्स में हम 1 से माइनस कर देते हैं,
क्योंकि हम चाहते हैं bx को ab में से माइनस करना. So how we will get it? Just have a look. We will subtract both sides by 1. This implies 1 minus bx upon ab is equal to 1 minus 1 upon root 2. अब ऐसा करने से देखिए ab को हम यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. This will be now ab minus bx upon ab. And this will now be root 2 into 1 will be root 2 minus 1 upon root 2. देख रहे हैं आप? तो हमने क्या किया, AB को 1 से मल्टीप्लाई किया, AB माइनस BX, तो यहाँ पर अब AB में से BX माइनस हो रहा है और हमें क्या मिल जाएगा, AX, जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा है. So here now we can write in place of AB minus BX we can write AX and in denominator we have AB. This is now equal to root 2 minus 1 upon root 2. और अब यहाँ पर आप देखिए डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है. This is root 2 and irrational number in the denominator. So to rationalize it, we will be multiplying both numerator and denominator by root 2 itself. यहाँ rationalize करने के लिए डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम ऊपर नीचे रूट 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ दिस विल बी नाउ रूट 2 इंटू रूट 2 स्क्वायर हो जाएगा एंड 1 इंटू रूट 2 विल बी रूट 2 upon here again we will have root 2 whole square, root 2 into root 2. This further can be written as ax upon ab equal to root 2 whole square will be 2 itself minus root 2 upon again root 2 whole square is 2. So this is the required ratio. यही हमसे पूछा था what is the value of ax upon ab और ये मिल गया है. और ax कैसे मिला, यहाँ पर देखिए ab में से जब हमने bx को माइनस किया, इस कंप्लीट लेंथ ए बी में से बी एक्स को माइनस किया तो ए एक्स मिल रहा है, वही हमने यहाँ लिखा है ए एक्स अपॉन ए बी. ठीक है, एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन. हमें यहाँ स्टार्टिंग में ये फिगर दिया गया था और कहा गया था कि एक्स वाई इज़ पैरेलल टू ए सी और हमें दिया गया था कि ये दोनों एरियाज़ इक्वल हैं और ये रेशियो फाइंड आउट करना है. क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो हम देख पा रहे हैं कि ट्राइंगल बी एक्स वाई और ट्राइंगल बी ए सी, ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो रहे हैं क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मिल रहे हैं. और सिमिलर होते ही इनका जो एरिया का रेशियो है वो इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स के. जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है उसके स्क्वायर के इक्वल, और वो हमें मिल गया है यहाँ पर हमने वही साइड्स चूज़ की जिसमें हमें ए बी मिल रहा है और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड मिल रही है. अब हमने देखा कि ये एरियाज़ में एक रिलेशनशिप है और वो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए सी जो बड़ा ट्राइंगल है वो एरिया डबल है छोटे ट्राइंगल की. और ऐसे में जब हमने इनका रेशियो लिया ये आ रहा है 1:2 और जब हमने यहाँ रखा तो ये स्क्वायर को ट्रांसपोज किया इधर, स्क्वायर रूट हो गया एंड दिस इज़ गिविंग अस बी एक्स अपॉन ए बी इक्वल टू √1/2 और ये हो गया 1/√2 और इसको आगे हमने 1 से सब्ट्रैक्ट किया तो बी एक्स की जगह अब हमें यहाँ न्यूमरेटर में ए एक्स मिल जाएगा इस तरह से कैलकुलेट करने पर, सिंप्लीफाई करने पर, और यहाँ से हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया. और इसके बाद हमने सिर्फ डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया है. देखिए अब रैशनल नंबर 2 आ गया डिनोमिनेटर में, पहले यहाँ इरेशनल नंबर था √2 डिनोमिनेटर में. अब रैशनलाइज करने के बाद यहाँ पे रैशनल नंबर आ गया, हमने √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, यहाँ मिल गया √2 स्क्वायर माइनस √2 और ये हमारा रिजल्ट है. गेटिंग इट? सो टुडे वी लर्नड what is the ratio of the area of similar triangles. I hope everything is clear. This example is also clear. Go through it once again and then we will be doing exercise 6.4 in our next video. Okay then, bye for now.